गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? तो आज हम लोग यू पढ़ेंगे वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर रिजल्ट्स इन अ वेक्टर। सो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। यस। सो टुडे वी विल स्टार्ट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। से वेक्टर multiplied by a vector results in a vector. Like you have a radial distance and you multiply with a force and you get a torque. So torque is a vector. Now we to differentiate it with the other multiplication which we learnt yesterday was dot product. This is called cross product. This is called cross product. Correct? This is called cross product. Now, how do we write it? A cross, we call it cross, not multiplication, multiplied, cross. B is a vector C. So when we multiply two vectors A and B as a cross product, we get an output which is again a vector. Now when we say C is a vector, so as we know C must have two things. One is its magnitude and other is its direction. Correct? Then first let us look at the magnitude. So suppose I have two vectors like this is A and this is B. This is B and this is the angle between them which is theta. Then the magnitude of C, which is the cross product of A and B, is given as magnitude of A into magnitude of B into sine theta. In the dot product it was cos theta and in the cross product it is sine theta. That's what you get as a output. So A B sine theta and the direction. So ये तो बहुत आसान है, A B sine theta हमको मिल गया. There is absolutely no problem. Correct? लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो यही सीखना है. इसको बोलते हैं डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल. डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल. तो C इज डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल. तो C इज A B साइन थीटा एंड C का जो डायरेक्शन है वो क्या है? डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल. नाउ व्हाट इज दिस राइट हैंड रूल? तो सम ऑफ यू मे बी ऑलरेडी अवेयर और बाकी जो लोग अवेयर नहीं हैं उनको आज कुछ डांस करना पड़ेगा, भरतनाट्यम. तो राइट हैंड रूल, फर्स्ट टेक आउट योर राइट हैंड, draw this in your
notebook, A and B. बना लिए. Now we are going to do first A cross B. First A cross B. So when I am telling A cross B, तो देखिए आपको क्या करना है. पहले आप राइट हैंड लीजिए अपना, एकदम ऐसे ऐसे पूरा स्ट्रेच, अंगूठा ऊपर की ओर और ये ऐसे पूरा ऐसे. राइट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं. मतलब जिस हाथ से आप लिखते हैं वही हाथ. ठीक. When we say curl your finger, देखिए दो तरीके से आप फिंगर आपको यदि मोड़ना है, यदि इस साइड मोड़ना है तो आपको अंगूठा ऊपर रखना पड़ेगा, फिंगर मोड़ रहे हैं, और यदि दूसरी ओर मोड़ना है तो अंगूठा नीचे करना पड़ेगा. बस यही दो तरीका हो सकता है फिंगर मोड़ने का, या तो ऐसे या ऐसे. करेक्ट. तो A cross B में when we do A cross B, then align your, all this has to be done with your right hand, with right hand. Align your fingers along vector A in such a way that fingers can be curled towards B vector. Align your fingers along vector A in such a way that fingers can be curled towards B. तो आप A के ऊपर में अपना फिंगर्स रखिए इस तरह से कि वो B की ओर घूम सके. रखिए अपने अपने कॉपी में A के अलोंग रखिए अपना राइट हैंड. तो देखिए ये है A, ऐसे रखे तो मैं इसको B की ओर मोड़ सकता हूं. मैं ऐसे रखूंगा तब तो मैं B की ओर नहीं मोड़ सकता हूं. तो मैं कैसे रखूंगा? ऐसे. Then what is the direction of thumb? Into the plane. So actually when I can do this, then direction of thumb indicates what? Direction of vector C. Direction of vector C. That's the right hand rule. That's the right hand rule. Align your fingers along A in such a way that fingers can be curled towards B. तो अंगूठा किधर दिखा रहा है? Into the plane. तो into the plane का सिंबल क्या है? क्रॉस. क्रॉस into the plane. So that is the direction of vector C. तो यहां से एक चीज तो क्लियर है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर C will always be perpendicular to the plane of vector A and B. कोई भी दो वेक्टर ले लो, कोई भी दो वेक्टर ले लो,
वो एक प्लेन से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा? देयर विल बी अ प्लेन विच कैन पास थ्रू दोस टू वेक्टर्स। यू टेक एनी टू वेक्टर, एनी टू वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो, उससे एक प्लेन पास करेगा। हाँ, देयर विल बी वन प्लेन जिसमें वो दोनों रहे। ठीक, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज perpendicular to the plane of the two vectors. Cross product of any two vector will always be perpendicular to the plane of the vectors. वो दो वेक्टर का जो प्लेन है, वो दोनों वेक्टर को मिला के जो प्लेन है, क्योंकि हम तो उसी प्लेन पर ना उसको घुमाएंगे हाथ को, तो जो भी डायरेक्शन होगा वो हमेशा ही तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स will always be perpendicular to the plane of two vectors. कॉमन प्लेन, दोनों वेक्टर का एक ही प्लेन जिसमें दोनों वेक्टर हो, वो एक यूनिक प्लेन होगा। You can't have two planes passing through any two vector, two different plane. So there will be only one plane, and cross product will always be perpendicular to that plane. ठीक है, तो ये हुआ हमारा डायरेक्शन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। if I ask you to do B क्रॉस, इसी पिक्चर में B क्रॉस है, तो जहां तक C के मैग्नीट्यूड का सवाल है तो ए बी साइन थीटा ही होगा। लेकिन डायरेक्शन जरा आप निकालिए, तो इस बार आपको हाथ किधर रखना है? बी में। देखिए, पहले हमने ए में रखा था, जो फर्स्ट है उस पर रखकर सेकेंड वाले की ओर मोड़ना है। तो यहां पर अब फिंगर्स किसके अलोंग रखेंगे? बी के अलोंग। तो रखिए बी के अलोंग फिंगर, रखिए बी के अलोंग फिंगर, और इसको आप मोड़िए ए की ओर। तो अंगूठा किधर दिखा रहा है? आउट ऑफ प्लेन। तो उसका सिंबल क्या है? ये। तो क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज देख लीजिए, बिकॉज मैग्नीट्यूड भले ही सेम है बट डायरेक्शन तो सेम नहीं है, तो वेक्टर सेम नहीं हुआ। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट में तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं। ए बी कॉस थीटा चाहे बी ए कॉस थीटा, बात बराबर है। तो डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये पूरा का पूरा उलट जाता है, समझ गए? तो ए क्रॉस बी इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा है, आप चाहे ए को पहले लिखो चाहे बी को पहले लिखो, क्या अंतर पड़ता है? ए बी साइन थीटा इज सेम एज बी ए साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड इज नॉट गोइंग टू बी
हाँ, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इनटू द प्लेन। हाँ, आएगा आएगा, आईजे में भी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बट आईजे में भी जो आएगा वो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही होगा। हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा तरीका होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का कि इफ आई वांट टू फाइंड आउट नॉर्मल टू एनी प्लेन ऑफ टू वेक्टर, सपोज मेरे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, एंड आई वांट टू फाइंड आउट अ वेक्टर विच इंडिकेट नॉर्मल टू दैट प्लेन, तो क्या है क्रॉस प्रोडक्ट? यूनिट वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विल बी नॉर्मल टू दैट प्लेन। बस हो गया। तो दैट्स द वे ऑफ फाइंडिंग normal to any plane. If I know two vectors and we want to find out a plane, a normal direction of normal to that plane in which those two vectors are, so we can take help of cross product. तो यदि आप ये लिख लिए हो तो हम आगे बढ़े। तो आइए पहले हम लोग थोड़ा इसके मैग्नीट्यूड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें। Geometrical meaning of magnitude of cross product. Geometrical meaning of magnitude of cross product. ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, ये है मान लीजिए मेरा ए और ये है बी और ये है थीटा। तो ये क्या होगा? बी साइन थीटा। तो व्हाट डू यू मीन बाय ए इंटू बी साइन थीटा? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वो ये क्या देता है? बेस इंटू हाइट, डबल ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, डबल ऑफ द एरिया ऑफ द। तो यदि मैं इसको पूरा एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दूं, तो हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम का एरिया होगा कितना? 1/2 ए बाई बी साइन थीटा, ए इंटू बी साइन थीटा, हाफ बेस इंटू हाइट। यानी पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना हुआ? ए बी साइन थीटा, डबल ऑफ दैट। कैसे नहीं है? इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? ब्लू वाले ट्रायंगल का एरिया पी क्यू आर कितना होगा? होगा। और ये बराबर होगा, ये बराबर होगा ना दोनों, ये और ये पैरेललोग्राम है भाई। तो इसका मतलब magnitude of cross product is the area of the parallelogram formed by the two vectors. Magnitude of cross product of any two vectors is
area of the parallelogram formed by the two vectors. So, we have a geometrical meaning of the magnitude of the cross product. So, the magnitude of cross product of any two vector is area of the parallelogram formed by the two vectors. तो ये हो गया. हाँ, ये A है. ये नहीं, हम तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना. A is the magnitude of A vector. B sin theta, B is the magnitude of B vector. B वेक्टर का मैग्नीट्यूड B है, तो ये हाइट B sin थीटा हो गया. A वेक्टर का मैग्नीट्यूड A है, तो ये बेस इंटू हाइट हो गया. समझ गए? तो अब आइए हम लोग जरा, हाँ, हाँ, तो अब देखिए, यदि हम बोले A क्रॉस B is equal to 0, where A is not 0, but magnitude of A is not 0 and B is also not 0. मतलब कोई भी नल वेक्टर नहीं है. कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको क्या बोलते हैं? नल वेक्टर. A vector with 0 magnitude is called null vector. डायरेक्शन कुछ भी हो, क्या अंतर पड़ता है? हाउ यू विल शो द डायरेक्शन जब मैग्नीट्यूड है ही नहीं तो. आई वेंट 0 मीटर, कुछ भी बोल दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्या अंतर पड़ता है? इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. यू हैव नॉट मूव्ड, तो डायरेक्शन बिकम्स इररिलेवेंट. चलिए, तो ए एंड बी यदि ऐसा है तो इसका मतलब क्या है? तो टू वेक्टर्स आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल बोलते हैं. टू वेक्टर्स आर तो टू वेक्टर्स आर, इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर. और
समझ गए? तो यदि मुझको चेक करना है कि दो वेक्टर पैरेलल है कि नहीं, तो हम उसके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को चेक कर लेंगे, जीरो है कि नहीं। और यदि मुझको चेक करना है कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट को चेक कर लेंगे, वो जीरो है कि नहीं। डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मतलब पैरेलल। पैरेलल पैरेलल तो है ही, सेम डायरेक्शन में या एंटी डायरेक्शन में है वो दूसरी बात है, लेकिन पैरेलल तो है ही। तो ये हुआ सेकेंड मीनिंग, सेकेंड यूज। पहला यूज वो था। ठीक है, अभी थर्ड थर्ड चीज जो हम जान सकते हैं, अभी देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए, मेरे पास एक वेक्टर है बी, इनके बीच का एंगल है थीटा, एंड आई फाइंड अ वेक्टर सी विच इज ए क्रॉस बी। तो व्हाट डू वी नो? We know that vector C is perpendicular to the plane of vector A and B. Plane of vector A and we know. That means if I have to find out the direction of the normal of any plane or a plane of two vectors, then what we have to do? We just have to find out unit vector of C. Unit vector of C will give you what? It will give you what? Direction of normal. इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन of the two vectors A and B. Direction of normal to the plane of the two vectors A and B. Direction of normal to the plane of the two vectors A and B. समझ गए? ठीक है, तो ये आपका थर्ड यूज है, हम नॉर्मल निकाल सकते हैं। अब आइए जरा हम लोग देखें कि कंपोनेंट फॉर्म में हम कैसे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट
अच्छा, आई क्रॉस आई क्या होगा? जीरो, क्योंकि 1 × 1 × साइन 0 डिग्री, तो ये हो गया जीरो। तो जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के ये भी जीरो, क्योंकि सब साइन 0 डिग्री है। तो आई का मैग्नीट्यूड कितना है? आई तो यूनिट वेक्टर है, आई का मैग्नीट्यूड 1 है, जे का भी मैग्नीट्यूड 1 है। हम 1 आई नहीं लिख के केवल आई लिखते हैं, है ना, यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब आइए बात आई क्रॉस जे, 1 × 1 × साइन 90 डिग्री, तो ये तो 1 हो गया, मैग्नीट्यूड इज 1। वी विल कम टू द डायरेक्शन। इसका तो डायरेक्शन जानने का कोई जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही जीरो है, तो वो जीरो है। तो इसी तरह से आई क्रॉस जे विल बी 1, आई क्रॉस के जे क्रॉस के ये सारे के सारे 1, चाहे आई क्रॉस जे हो, जे क्रॉस आई हो, आई क्रॉस के हो, के क्रॉस आई हो, जे क्रॉस के हो, के क्रॉस जे हो, दे मैग्नीट्यूड इज 1। डायरेक्शन, नाउ लेट अस कम टू डायरेक्शन। डायरेक्शन, तो हमारा जो एक्सिस है ना, एक्स वाई जेड, इसका ओरिएंटेशन राइट हैंड रूल के हिसाब से ही है। इसका ओरिएंटेशन राइट हैंड रूल के हिसाब से है। जैसे देखिए, ये यदि x है और ये यदि y है, तो z किधर होता है? प्लस z किधर होता है? हेलो, यदि वो x है और ये y है, तो प्लस z किधर होता है? फिर ऐसे प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, ऐसे मत बोलो। हाँ, 2D में हमको एक बच्चा मिला जो क्लास 12 पास करने वाला था, वो बोला जेड का डायरेक्शन इज रिजल्टेंट ऑफ एक्स वाई का अपोजिट। ऐसा मत सोचिए भाई, वो उस प्लेन में है ही नहीं। वो कैसे है? ये है जेड बाहर की ओर, ये क्या है? बाहर की ओर। क्यों? एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई इज जेड। हमारा एक्सिस जो है वो उसी हिसाब से बना हुआ है। तो जेड किधर है? आउट ऑफ प्लेन। तो एक्स क्रॉस वाई इज जेड। लेकिन यदि हम वाई क्रॉस जेड करें तो माइनस जेड इनटू द प्लेन। तो एक्स क्रॉस वाई इज जेड, मतलब ये है आई कैप, ये है जे कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप जेड।
and j cap cross I cap is minus k cap. अच्छा, इस डायरेक्शन में जेड क्रॉस एक्स कीजिए तो आप अपने हाथ से जेड क्रॉस एक्स, अंगूठा किधर दिखाएगा? जेड क्रॉस एक्स, अंगूठा किधर दिखाएगा? जेड किधर है? जेड बाहर की ओर है, बाहर की ओर। और एक्स तो किधर दिखाएगा अंगूठा? ऊपर की ओर। यानी कि जेड मतलब के क्रॉस एक्स मतलब आई, तो के क्रॉस आई इज जे कैप वाई की ओर। के की ओर, जेड की ओर हाथ कीजिए, बाहर की ओर, बाहर की ओर अपने कॉपी में ऊपर की ओर ऐसे कीजिए, और एक्स की ओर मोड़िए तो देखिए अंगूठा किधर जा रहा है? वाई की ओर। तो इसको याद रखने का एक बड़ा सिंपल टेक्निक है, क्लॉकवाइज। क्या है भाई? तो ऐसे याद रखिए, कभी भी हो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो फटाक से ये बना लीजिए। तो टेक्निक क्या है देखिए, यहां लिखिए आई, यहां लिखिए जे, और यहां लिखिए के, और इस पर एक क्लॉकवाइज का सिंबल बना दीजिए और यहां लिख दीजिए प्लस। यानी कि यदि हम इस सीक्वेंस में घूमेंगे तो हमको प्लस साइन मिलेगा, और यदि उल्टा सीक्वेंस में घूमेंगे तो माइनस साइन मिलेगा। आई के साथ जे क्रॉस करेंगे तो हमको प्लस के मिलेगा, जे के साथ के क्रॉस करेंगे तो हमको आई मिलेगा, के साथ आई क्रॉस करेंगे तो हमको जे मिलेगा। लेकिन जे के साथ यदि आई क्रॉस करेंगे तो माइनस के मिलेगा, आई के साथ के क्रॉस करेंगे तो माइनस जे मिलेगा, समझ गए? और के साथ जे क्रॉस करेंगे तो माइनस आई मिलेगा। ठीक है? तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है टू फाइंड आउट आई जे के का क्रॉस प्रोडक्ट। अभी चलिए हम अगले अगले पेज में आपसे सारा का सारा लिखवा लेते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इस टूल को यूज कैसे करना है। बस याद रखिएगा क्लॉकवाइज प्लस, आई जे के क्लॉकवाइज। तो देखिए आपको क्या याद रखना है? क्लॉकवाइज प्लस I have I cap, I have J cap, I have K cap. तो यदि हम लिखें I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I, हम लिखें I क्रॉस K, K क्रॉस J, J क्रॉस I। बोलिए। I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I, K क्रॉस I। हाँ, नहीं लिखने से प्लस ही होता है, प्लस ही है सब। I क्रॉस K,
के क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, माइनस के क्रॉस आई। कुछ नहीं, इसको ऐसे समझिए, तो के क्रॉस आई क्या होता है, जे, तो माइनस जे। माइनस जे। सेम थिंग विल हैपन विद दिस ऑल्सो। के क्रॉस माइनस आई, माइनस जे। माइनस के क्रॉस माइनस जे, तो ये तो इज सिंपली आई कैन राइट एज के क्रॉस जे इज माइनस आई कैप। दोनों माइनस है, माइनस माइनस खत्म हो गया, जो है सो है। समझ में आया? हाँ, हम रुक रहे हुए हैं। अब आप कोई भी किसी के साथ आप कोई भी साइन को आप चेक करके बोल सकते हैं कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है? हेलो, यस सर। तो अब आइए, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए, जिसको हम लिखते हैं A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और दूसरा वेक्टर है B विच इज A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ये आपको याद रखना है, आई जे के प्लस। ठीक है? तो अब शुरू करें मल्टीप्लिकेशन। तो ए आई तो जीरो होता है, आई तो पहला टर्म तो जीरो हो गया। अब आई क्रॉस जे, तो A1 B2, आई क्रॉस जे क्या होगा जी,
के। अब आइए A1C2, A1C2, तो I क्रॉस के, I माइनस जे, अब आइए B, B1A2, J क्रॉस I, J क्रॉस I इज माइनस के, B1 B2 तो 0, J क्रॉस J, B1C2, प्लस I क्या, अब के पर आइए C1A2, K क्रॉस I, K क्रॉस I इज प्लस J कैप, C1B2, K क्रॉस J, आया। तो सब I को एक साथ कर लें, सब J को एक साथ कर लें, और सब K को एक साथ कर लें, हाँ अरेंज कर लें। I क्या है, B1C2 माइनस J में क्या है, A1 C1 A2 और सर के लिख चुके हैं, सॉरी, I कैप J कैप K कैप, ठीक है, यही आंसर है। अब ये थोड़ा लगा होगा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है इसको मल्टीप्लाई करने का, नहीं तो आपको यदि हम देंगे तो इतना बैठ के लंबा कीजिएगा। इसका एक शॉर्टकट तरीका है, इसका जो शॉर्टकट है वो आप लोग मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट में पढ़िएगा, जिसका मैथमेटिक्स से पढ़ेगा, जिसका नहीं मैथमेटिक्स है वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन मैं आपको जो सिखा देता हूं वो शॉर्टकट फॉर वेक्टर, उसको डिटर्मिनेंट से मत जोड़िएगा। तो देखिए A क्रॉस B है ना, तो इसको ऐसे लिखिए, यहां पर लिखिए I कैप, फिर लिखिए माइनस J कैप, फिर लिखिए K कैप। बोलिएगा सर माइनस J कैप क्या लिख रहे हैं, बोले हम बोले भाई ये एक टूल है, तरीका है, इसको मैथमेटिक्स के साथ मत जोड़िएगा, मैथमेटिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ मत जोड़िएगा, ये एक तरीका है। अब केमिस्ट्री के क्लास में आपको ढेर तरीका सिखाया जाएगा, निमोनिक्स, हाँ, बेटा मांगे स्कूटर बाप राजी, तो ठीक है, बोलिएगा सर ये कोई लॉजिक है, हाँ, मेरा बाप तो राजी नहीं होता है, हाँ, तो वो तो लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, हाँ। तो A1 B1 and C1, first vector A1 B1 C1, then second vector A2 B2 C2, लिख दिया। ठीक, अब देखिए लिखिए I, ये बेसिकली हम लिख रहे हैं A क्रॉस B, पहले हम क्या लिखे I का रो और कॉलम हटा दीजिए,
और जो बचा उसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, क्रॉस B1C2 C1B2। आई का रो और आई का कॉलम हटा दीजिए, क्या बचा? दिस दिस B1C2 माइनस C1B2। देखिए मैच कर रहा है कि नहीं? मैच कर रहा है। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? माइनस J। इस बार आप उसका रो और कॉलम हटा दीजिए, क्या बचा? A1C2 C1A2। देखिए तो ठीक सेम है कि नहीं? यहां प्लस था इसलिए यहां माइनस था, अब माइनस बाहर ले लेंगे तो यही हो जाएगा। ठीक, करेक्ट। इसके बाद के कैप, अब के का हटा दीजिए, अब बचा क्या? A1B2 B1A2। देखिए वही है कि नहीं? तो ये है शॉर्टकट तरीका फटाफट लिखने का, क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए इसको लिख लीजिए, हम लोग एक दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ठीक क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे यूज करना है। हेलो, समझ में आया बेटा? ऑनलाइन? हेलो। हाँ, एक दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आप ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि इसको कैसे करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। क्या एक वेक्टर में कैसे तीन से ज्यादा टर्म रहेगा? आई जे के अलावा क्या रहेगा? तो अच्छा एक मिनट, स्केलर में 2+3+3 क्या के साथ मल्टीप्लाई करते हो? अच्छा 2+3 × 3 कैसे करते हो? एक साथ मल्टीप्लाई करते हो, सीखे हो ऐसा कोई टेक्निक? वही वही चीज यहां भी करोगे, फिर उसके साथ एक क्रॉस बी कर लोगे, उसके बाद सी के साथ क्रॉस कर दोगे। करिए, कोई ऐसा टेक्निक है 2 × 3 × 3 एक साथ किए? नहीं। हाँ, तो यहां भी नहीं। हाँ, चलिए लिख लिए। अब आइए कुछ एग्जांपल सॉल्व करें। A is equal to 3i cap plus 2j cap minus 5k cap। B is equal to 2i cap minus 6j cap plus 3k cap। Please find out A cross B and also
बी क्रॉस ए, दोनों निकालिए। पहले आप कीजिए, फिर मैं आके बनाऊंगा। अब आ रही है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो पहले आई कैप माइनस जे कैप फिर के कैप का क्या है 3 2 -5 क्या है 2 -6 +3
खींच दी ऐसे लाइन, इज इक्वल टू पहले आई कैप -18 -4 -18 -4 जे 9 -10 मैं गलती कर रहा हूं तो बताइएगा। माइनस, सॉरी आई में मैं गलती किया हूं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यस सर आई में मैं गलती किया हूं। 6 प्लस -30, हाँ -24, सॉरी 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 सॉरी, मैं के वाला लिख दिया वहां, हाँ के में -18 -4 -22, 24 नहीं, -20 -22, तो ये कितना आया? -24 आई कैप -19 जे कैप -22 के कैप, सबका आया? किसका किसका आया? अब आइए बी क्रॉस ए, आई कैप -जे कैप के कैप, पहले बी को लिखेंगे 2 -6 +3, फिर ए को लिखेंगे बाद वाला बाद में 3 +2 -5, पहले वाला पहले लिखेंगे बाद वाला बाद में, तो ये कितना आया? आई कैप 30 -6 कितना होता है? -जे कैप -10 -6 -9 -19 के 4 +18, तो +22, so this is 24 I cap +19 J cap +22 K cap, 24 I cap 19 J cap 22 K cap, समझ गए? हेलो, हाँ एक ही बात है, एक ही बात है, मतलब मैं दिखाना चाह रहा था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए यहां भी ठीक माइनस ही आता है, ठीक है, तो जस्ट द डायरेक्शन का अंतर है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये हुआ सी वेक्टर, इसका आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, है ना, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट अंडर, और यदि यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका यूनिट वेक्टर भी आप निकाल सकते हैं, हम लोग कल सीखे यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का। तो ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक और कीजिए, जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए
Tomorrow is the last class. Log and exponential. चलिए, सबका हो गया? हेलो, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये है आई, ये है माइनस जे, ये है के, ये है 3, ये है 0, ये है 0, ये है -3, ये है 5। तो ये कितना आएगा? आई कैप, आई हो गया 0 माइनस -3 माइनस जे कैप, क्या होगा? 15 माइनस 0 प्लस के कैप,
-9 -0, 3i cap -15j cap -9k cap। कितने लोगों का ऐसा आया? सबका आ गया। रनीत हाथ नहीं उठाया। चलिए, और बी क्रॉस ए भी करेंगे तो वैसे ही कुछ आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये है सी, तो सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये मैग्नीट्यूड है। तो इन दोनों वेक्टर से बने हुए पैरेललोग्राम का एरिया यही है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ फॉर्म यूजिंग दिस टू वेक्टर। और यदि हमको मालूम करना है कि भाई इसके प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, तो सी का, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए पूरे को, तो वो हो गया आपका यूनिट वेक्टर। एंड दिस वेक्टर इज इन विच डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू दिस। यस सर, ठीक। तो ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट। सो नाउ यू नो डॉट प्रोडक्ट, यू नो क्रॉस प्रोडक्ट, यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, यू नो हाउ टू एड वेक्टर, है ना? तो अब आइए, हमारे अप्रोक्सीमेशन में एक छोटा सा टॉपिक छूटा हुआ था, दैट वाज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये कुछ ऐसा होता है, देखने में बहुत अजीब लगेगा। साइन थीटा इज रफली इक्वल टू tan theta is roughly equal to theta, where theta is in radian and is very small। अब ये बोल सकते हैं कि कितना है स्मॉल, तो रफली वॉट एवर इट विल ट्रांसलेट इन रेडियन, डिग्री में यदि बोला जाए, इन डिग्री थीटा शुड बी लेस देन से 15 डिग्री। 15 डिग्री से कम यदि है, 15 भी नहीं, ज्यादा ही हो गया, 10 डिग्री बहुत है, 10 डिग्री के नीचे इसको यदि रेडियन में कन्वर्ट कर दें तो देन साइन थीटा इज रफली इक्वल टू टेन थीटा इज रफली इक्वल टू थीटा, रफली। तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे फिजिक्स में। दिस अप्रोक्सीमेशन मेक्स लाइफ सिंपल। Approximations are used to make life simple without affecting it much, है ना? So without affecting the life much, if we can make it simple, then it is welcome. So sin theta is approximately equal to tan theta is approximately equal to theta। cos theta को छोड़ दीजिए, मत लाइए यहाँ पे।
तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, क्यों हम कंफर्टेबल हैं इसको। हाँ, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यही है, लेकिन मैं आपको जस्ट समझा देता हूं कि ये हम कर क्या रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रॉकेट साइंस है। हाँ तो हाँ ठीक है, वो सब मैथ्स के क्लास में सीखिएगा ना, साइन थीटा का एक्सपेंशन, टेन थीटा का एक्सपेंशन। हम यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकली समझा दें। साइन थीटा का एक्सपेंशन जो है उसको आप विजुलाइज कर सकते हैं? नहीं। तो आप विजुलाइज नहीं कर सकते हैं, आप क्या करते हैं, एक मिनट। हाँ हेलो। हम्म। अरे तुम लोग इतना जल्दी पहुंच गया। हाँ, तो वहां पर टीचर लोग पहुंचते हैं 10 बजे। ठीक, 10 बजे पहुंचने बोले थे। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। दिल्ली पब्लिक स्कूल किधर है तुम्हारे, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड, एकदम मेन गेट, जो मेन गेट है दिल्ली पब्लिक स्कूल का, जहां पर सिक्योरिटी लोग खड़ा है, वहीं पर हो तो? हाँ बड़ा सा गेट है, हाँ ठीक है, सामने मैदान उदान दिख रहा है गेट के अंदर। हाँ ठीक, तुम्हारे लेफ्ट है, तुम्हारे लेफ्ट। तुम एकदम राइट टर्न करो, एकदम अबाउट टर्न, पूरा एकदम 180 डिग्री घूम जाओ। हम्म, घूम गए? तो घूम गए तो तुम्हारे राइट हो गया दिल्ली पब्लिक स्कूल। तुम सामने की ओर देखो, थोड़ा सा लेफ्ट देखो तो एक व्हाइट कलर का 2 स्टोरी बिल्डिंग दिखेगा उसी रोड पर, लेफ्ट साइड। राइट साइड तो खाली मैदान है। दिखा? हाँ, तुम्हारे राइट साइड होना चाहिए दिल्ली पब्लिक स्कूल। और डीएवी मॉडल, डीएवी मॉडल कहाँ है? तुम, एक व्हाइट कलर का बिल्डिंग, उसमें उसमें अंकुरन लिखा हुआ होगा। पहले नहीं, इसी रोड पर आगे। तो तुम्हारे लेफ्ट है डीपीएस या राइट? तुम्हारे राइट साइड में है डीपीएस, मतलब तुम मेन रोड पर हो कि डीपीएस के गेट के ऊपर उठ गई हो, ऊपर जो उठता है वो उठ गई हो? हाँ मेन रोड पर, हाँ उठ जाओ, तुम डीपीएस की ओर उठ जाओ। डीपीएस की ओर उठ जाओगी तो तुम आगे चली जाओगी तो लेफ्ट साइड में तुमको व्हाइट कलर का एक बिल्डिंग दिखेगा। वो वो हाँ, वो एक व्हाइट कलर का बिल्डिंग है। तुम वहां पर जाना, गार्ड को बोलना कि हमको यहाँ पर काम है। तो उन लोग थोड़ा रुकने बोलेगा, क्योंकि टीचर लोग थोड़ा 10 बजे से आता है, मैं 10 बजे बोला था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। हम्म। आसनसोल से। हम्म। हाँ हेलो। अच्छा सुनो ना, ये मेरा एक दो ठो स्टूडेंट आएगा आसनसोल से, एक आध तो आ भी चुका है। हाँ, 2 3 लड़की आएगी, उसको फिजिक्स में ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी प्रैक्टिकल है 12 का, हाँ वो करा देना ना। मेरा कि तुम्हारा ये वही मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, हाँ हाँ। हाँ हाँ, बस उन लोग आ भी चुका है, लोग गेट पर ही है। हाँ। ठीक है, तुम आराम से 9:30 9:10 तक पहुंचो ना, हम उनको 10 बजे बोले थे, पहले ही पहुंच गया। ठीक। ठीक।
आ जाओ मोस्ट, जब जिस दिन फ्री हो आ जाओ। हाँ, तो देखो ये है आर और ये है आर, ठीक है। तो सपोज ये है ओ, ये है ए, ये है बी। हाँ, ये है ए ओ बी आर आर, ठीक है। ये सिंपल। तो इसको यदि मैं यहां से एक ड्रॉप दूं, ये है बी डैश। तो ओ बी डैश इज व्हाट, और बी बी डैश, एक बी बी डैश, बी बी डैश इज व्हाट, आर साइन थीटा। वेरी गुड। एंड ए बी आर्क is how much? R theta, because theta is in radian. That's the definition of arc length is radius into theta angle. Theta is in radian. नहीं 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 नहीं, ये इसको हम R थोड़ा ही बोल रहे हैं। एनी लेंथ, ए बी लेंथ इज R थीटा, थीटा जितना है उसके हिसाब से हो जाएगा। तो ये तो हम लोग जानते हैं। अभी हम इस एंगल को बहुत छोटा कर दें। तो B जो है वो यहां आ गया, B1, और B डैश जो है वो यहां आ गया। तो इफ दिस, ये थीटा डैश, थीटा 1, यदि मैं एंगल को बहुत छोटा कर देता हूं, तो अब क्या क्या हुआ, यू कैन से फॉर वेरी स्मॉल थीटा, से थीटा 1, तो B1 dash is roughly equal to B1A का आर्क। मतलब कहने का मतलब, ये जो परपेंडिकुलर में खींचा और ये जो आर्क आया, ये दोनों लगभग, क्योंकि ये काफी नजदीक आ गया। बी डैश, B1 डैश इज वेरी क्लोज टू ए, B1 dash is very close to A, very close to A. So that's the only approximation we are doing. B1 B dash is how much? R sin theta 1, and B1 A is how what? R theta 1. So R cancel, sin theta 1, ये roughly equal है, roughly equal to theta 1. बहुत जगह पूरा का पूरा ऑप्टिक, रे ऑप्टिक्स में आप जो भी फार्मूला यूज कर रहे हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v प्लस 1/u, all this formula is based on this approximation. Yes, b dash r sin theta, b1 dash is r sin theta 1, theta 1, हाँ, r theta 1, तो r theta 1 है, तो r theta 1, तो वही तो r काट के sin theta 1 इज रफली theta 1, ये r theta 1, हाँ वही रफली। तो ये हम एंगल, बड़ा एंगल करेंगे तो हम नहीं लिख सकते ये और ये बराबर है। बड़े एंगल के लिए
ये परपेंडिकुलर और ये आर्क बराबर नहीं है, बहुत दूर है, लेकिन ये नजदीक रखेंगे तो ये लगभग बराबर है। और वही चीज आप tan के साथ भी कर सकते हैं। tan थीटा इज हाउ मच? BB डैश बाई OB डैश। BB डैश बाई OB डैश। हाउ मच इज BB डैश? तो R साइन थीटा बाई OB डैश, इसको अभी OB डैश ही रहने दीजिए। बहुत छोटे एंगल के लिए फॉर थीटा 1 tan theta 1 is equal to R sin theta 1 by OB1 dash. Now for a very small theta 1, OB1 dash is almost equal to R. A small theta 1, OB1 dash is approximately equal to R. तो इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? Approximately equal to R sin theta 1 by R. ये भी आ गया, approximately equal to sin theta 1 and that is equal to तो वो प्रूफ हो गया। और ऐसे भी यदि वैल्यू देखो से 10 डिग्री, 10 डिग्री को रेडियन में कितना बोलेंगे? हाउ मच इज 10 डिग्री इन रेडियन? वन 180 डिग्री इज पाई, तो पाई बाई 180 इंटू 10 यानी पाई बाई 18, पाई बाई 18। तो दिस इज 0.174। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये रेडियन में है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0.1736। tan थीटा 0.1763। तो थर्ड डेसिमल में जाके थोड़ा सा अंतर है ना? तो थर्ड डेसिमल में अंतर मतलब डिफरेंस इज अराउंड, मतलब हाँ मतलब 0.23%। 10% होने से यहां होता डिफरेंस, हाँ? और यहां होने से 1% का डिफरेंस, यहां होने से पॉइंट में है, पॉइंट सब परसेंटेज, तो ठीक है, चलेगा। हाँ, इट इज लाइक 1000 kg आलू तौलने में 5-6 ग्राम चेंज कर दिया तो वही है ये। हाँ, है ना? हाँ, 173 ग्राम की जगह 176 ग्राम तुमको दे दिया, वो तो आलू वाला भी नहीं माइंड करता है। ठीक, तो दिस इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है? हाँ, बस ये छोटा ही सा चीज था, इसको हम लोग लेकिन बहुत ज्यादा यूज करेंगे, बहुत ज्यादा, हर जगह लिख देंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। एसएचएम का प्रॉब्लम बनाएंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, इसका बहुत जगह आपको वो दे भी देगा, या तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगेगा या फिर
बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगेगा, बोल देगा आर इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू, तो जैसे एसएचएम यदि कोई पेंडुलम को यदि झुलाएगा, ये यदि ऐसे झूलेगा यहां से यहां, ये थीटा है, बोल देगा थीटा इज स्मॉल, या फिर ये एल है और ये आर है, बोल देगा आर इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू एल, बोथ हैव सेम मीनिंग। या तो आप इसको यदि आप एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट अंडर के टर्म में लिखते हैं तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे, और यदि थीटा के टर्म में लिखते हैं तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे। समझ गए? यस, ठीक है, चलिए, थैंक यू। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। चलिए, कल फिर मिलेंगे, थैंक यू।